Hello, guys. A very good evening to all of you. Welcome back. In this session, we are going to talk about LRS scheme. LRS, which means Liberalized Remittance Scheme. Okay. I hope you guys have basic idea about this particular scheme. So, whenever we talk about LRS, it is basically for foreign remittances. So, being an individual, including minors, if you want to remit money abroad for any current account as well as capital account transactions. So, there is a scheme which was launched by RBI on in February 2004, which is called Liberalized Remittance Scheme. As per this particular scheme, being like this scheme is dedicated to individuals, which include minors also. Okay, and per pen card, the ceiling limit is basically 2,50,000 US dollar per financial year, right? तो एक साल में आप 2.5 लाख US डॉलर तक आपका फॉरेन में रेमिटेंसेस कर सकते हैं फॉर कैपिटल अकाउंट लाइक इन्वेस्टमेंट पर्पस एंड करेंट अकाउंट लाइक एजुकेशन ट्रैवल मेडिकल पर्पस और एनी अदर थिंग्स, राइट? तो ये स्कीम आपका क्या है, इसके फीचर्स क्या हैं, परमिसिबल नॉन परमिसिबल एरियाज कौन से, उन सब के बारे में आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बार जल्दी से सेशन को लाइक कर दें और अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें। एंड इफ यू आर न्यू टू आवर चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो विल गेट रेगुलर अपडेट ऑन दिस पर्टिकुलर सेशन, राइट? सो एलआरएस, जैसे मैंने आपको बताया कि कहीं ना कहीं ये स्कीम सिर्फ और सिर्फ आपका इंडिविजुअल्स के लिए है, ठीक है? इंडिविजुअल्स रेजिडेंट इंडियंस आपका, ठीक है, उनके लिए स्कीम आपका रहता है, ठीक है? तो जिसमें जैसे अगर हमें किसी भी पर्पजेस आपका जैसे फॉरेन में ट्रेवल करने के लिए जाना है और इसके अलावा आपका स्टडीज़ के लिए जाना है या फिर आपका मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए या कोई भी क्लोज रिलेटिव आपका जो फॉरेन में रह रहा है उसके मेंटेनेंस के लिए फंड ट्रांसफर करने हैं, तो उसके लिए ये स्कीम आपका आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया। तो क्या सीक्वेंस होता है, एंड देर इज अ फॉर्म कॉल्ड फॉर्म A2, ठीक है? अगर आपको जैसे रेमिटेंसेस करने हैं, जैसे अगर आपको डॉलर खरीदने हैं फॉर ट्रेवल पर्पस, तो कैसे आप खरीदेंगे, कहाँ पे आपको जाना होगा, कौन सा फॉर्म फिल करना होगा, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, राइट? So, liberalized remittance scheme is a foreign exchange policy initiative introduced by the Reserve Bank of India in 2004. It intended to simplify and streamline the process of remitting funds outside India, and this scheme is only for individuals, right? So, these are the areas where you can remit money abroad under this particular scheme, ठीक है? तो जैसे अगर करंट अकाउंट या बेसिक अगर हम उसमें बात करें, ठीक है, जैसे प्राइवेट विजिट टू एनी कंट्री एक्सेप्ट नेपाल एंड भूटान, गिफ्ट और डोनेशंस, गोइंग अब्रॉड फॉर एम्प्लॉयमेंट, इमिग्रेशन, मेंटेनेंस ऑफ क्लोज रिलेटिव अब्रॉड, travel for business or attending a conference or specialized training, expense in connection with medical treatment abroad, studies abroad, ठीक है? तो ये आपका कुछ जनरल आपके पर्पजेस जिनके लिए हम लोग आपका एलआरएस स्कीम का इस्तेमाल करते हैं, एंड दीज ऑल कम्स अंडर द करेंट अकाउंट। इसके अलावा कैपिटल अकाउंट में जैसे अगर बीइंग एन इंडिविजुअल if you have to make investment in abroad, like for like in joint ventures or wholly owned subsidiaries, or even to purchase the shares or any other debt instruments abroad, listed abroad, so you can also use this particular scheme. The only thing is the limit under this particular scheme is 2,50,000 US dollar per financial year as of now. Initially it was when it was get launched in 4th of February 2004, it was 25,000 US dollar, right? So as a step towards simplification and liberalization of foreign exchange facilities, and with a view to provide suitable opportunities to resident individuals in the light of the changing scenario, the LRS for resident individual was introduced on or become effective from 4th of February 2004 with an initial limit of 25,000 US dollar. Okay? So under LRS, individual including minors have allowed freely remit up to 2,50,000 US dollar per financial year for any permissible current account and capital account
ट्रांजेक्शन्स और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ठीक है। अब आज की जो लिमिट है अभी की आपका वो है 2,50,000 यूएस डॉलर एंड ये आपका इट कैन बी फॉर करंट अकाउंट, इट कैन बी फॉर कैपिटल अकाउंट और इट कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। अब जैसे अगर फैमिली अकाउंट्स में जो रेमिटेंसेस होते हैं, ठीक है, तो वहां पे मतलब यूजुअली दिस लिमिट इज पर इंडिविजुअल, ठीक है, 2,50,000। तो जॉइंटली इट कैन बी, जैसे 2 पर्सन है तो इट कैन बी 5 लाख यूएस डॉलर, ठीक है। पैन कार्ड के हिसाब से आपका जो जनरली यहाँ पे क्या होते हैं आपके रेमिटेंसेस आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। सो इनिशियली when this scheme was get introduced on 4th of February 2004, the limit was 25,000 US dollar. LRS limit has been revised in stays consistent with prevailing macro and microeconomic condition and it is directly driven by RBI, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ परमिसेबल एरियाज जैसे मैंने आपको देखा, ठीक है, देयर आर सम सर्टेन नॉन परमिसेबल एरियाज आल्सो एंड देयर आर सम एरियाज where which like where we have to take prior approval from government of India and ministry or different ministries as well, ठीक है। नॉन परमिसेबल की अगर हम लोग बात करते हैं तो जिसमें आपका जैसे परचेज ऑफ लॉटरी टिकट और प्रिस्क्राइब मैगजीन्स एंड अदर्स, तो ये कुछ एरियाज आपके आते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर कुछ गवर्नमेंट अप्रूवल्स में बात करते हैं तो वहाँ पे जैसे मिनिस्ट्रीज के रिक्वायरमेंट, जैसे अगर आप टूर एंड ट्रेवल के लिए आपका कल्चरल टूर के लिए कर रहे हैं, सो वी हैव टू टेक प्रायर अप्रूवल फ्रॉम एचआरडी डिपार्टमेंट्स या अदर्स, ऐसे अलग अलग सेगमेंट्स। तो बट इंडिविजुअल्स अगर नॉर्मल उसमें देखें तो जो लिस्ट हमने अभी गो थ्रू करा था दैट इज द वन, ठीक है। If you want to remit money abroad through by using LRS scheme, so what will be the sequence? So you have to fill a form which is known as Form A2 as you can see on my screen, ठीक है। तो अब ये Form A2 कहाँ मिलेगा? So you have to approach authorized dealers, mostly category 1 bank, ठीक है। So authorized dealers bank are basically these are the जैसे ये वो एंटिटीज होते हैं जिनको आरबीआई के द्वारा लाइसेंस दिया गया है फॉरेक्स बिजनेस में आपका ट्रेड करने के लिए, ठीक है। सो फर्स्ट यू हैव टू अप्रोच ऑथराइज्ड डीलर्स ब्रांचेस ऑफ एनी बैंक, ठीक है। तो ऑथराइज्ड डीलर्स कैटेगरी 1 के अंदर आपका आते हैं कौन सा? कमर्शियल बैंक, ऑल द कमर्शियल बैंक्स इंक्लूडिंग सम कोऑपरेटिव बैंक्स आल्सो। कैटेगरी 2 आपका जिसमें आरआरबीज एंड रिमेनिंग कोऑपरेटिव बैंक्स एंड अपग्रेडेड एफएफएमसीज, फुल फ्लेज मनी चेंजर्स, ठीक है। कैटेगरी 3 आपका जहां पे आते हैं डीएफआई, डोमेस्टिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन लाइक सिडबी, एक्सिम एंड ऑल, राइट। तो आपको ऑथराइज्ड डीलर्स कैटेगरी 1 के पास जाना पड़ेगा एंड यू हैव टू फिल दिस पर्टिकुलर फॉर्म व्हिच इज नोन एज सॉरी व्हिच इज नोन एज फॉर्म A2, ठीक है। सो फॉर्म A2 का फॉर्मेट कुछ इस तरीके से, ठीक है, जैसे आपका नेम ऑफ द एप्लीकेंट्स आपका, ठीक है, पेन नंबर है, एड्रेस आपका है, ठीक है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कोड आता है दैट इज कॉल्ड पर्पस कोड। जैसे एजुकेशन के लिए पर्पस कोड अलग होगा, टूर एंड ट्रेवल के लिए अलग होगा, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अलग होगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स के लिए अलग होगा, वो इस तरीके से आपका डिफाइंड होता है, ठीक है। तो ये फॉर्म आपको फर्स्ट यू हैव टू फिल दिस पर्टिकुलर फॉर्म and then you have to fill as an applicant you have to fill declaration form also। तो जहां पे आप डिक्लेयर करोगे कि इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के अंदर एलआरएस स्कीम के अंदर जो लिमिट्स हैं वो आपका ब्रीच नहीं हो रही है, मींस 2.5 लाख से कम का आपका रेमिटेंसेस है और जो सोर्स ऑफ इनकम आपकी है वो ऑथेंटिक सोर्सेज से आपकी है, ठीक है, एज यू कैन सी हियर, ठीक है। सो डिक्लेरेशन अंडर फेमा एक्ट 1999 आई, दिस नेम ऑफ द एप्लीकेंट, hereby declare that the total amount of foreign exchange purchase from or remitted through all sources in India during the financial year, including the application, is within the overall prescribed limit of LRS, which is 2,50,000 US dollar, and clarify that the source of funds for making the said remittance belong to me and the foreign exchange will not be used for प्रोहिबिटेड पर्पसेस, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये फॉर्म फिल करना होगा। देन आफ्टर दैट ऑथराइज्ड डीलर्स आफ्टर योर केवाईसी एंड ड्यू डिलिजेंस दे विल प्रोवाइड यू अ सर्टिफिकेट, ठीक है। तो इसके बाद उनके द्वारा एक सर्टिफिकेट आपका प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। सो सर्टिफिकेट बाय ऑथराइज्ड डीलर्स बैंक, सो जहां पे वो सर्टिफाई करेंगे आपका कि like certify that the remittance is not being made by or to ineligible entities and that the remittance is in conformity with the instruction issued by RBI from time to time under this। तो यहाँ पे नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द ऑफिसर, डेट, प्लेस आपका ये इस तरीके से काम करेगा, ठीक है। तो एक स्कीम आपका जो आपको कहीं ना कहीं
आपका जो नॉर्मल लाइफ है उसमें भी, या कहीं ना कहीं आपके द्वारा जो लोगों को गाइड करने में भी हेल्प करेगा और एग्जामिनेशन में भी हेल्प करेगा, ठीक है। सो एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट्स अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे फॉर्म A2 कौन सा फॉर्म होता है, ठीक है। और इसके अलावा आपका परमिसिबल एरिया जो आपके इसके हिसाब से हैं, ठीक है। इसके अलावा कौन सी ईयर में लॉन्च किया गया था, लिमिट क्या है, या अदर्स या किसके थ्रू आपका ये प्रोसीड होता है, वो सारी चीजें जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। सो आई होप यू फाउंड दिस पर्टिकुलर स्कीम इंटरेस्टिंग। ऐसे ही और वीडियोज के लिए आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं नेम ऑफ द टॉपिक, सो आई विल कम अप विद डेडिकेटेड वीडियो बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक एज वेल, राइट। तो हर रोज मैं आपके लिए एक 9 PM पे एक सेशन करता हूँ जिसमें एक नए टॉपिक को, जैसे फर्स्ट में हमने बैलेंस शीट इक्वेशन किया, देन हमने कोटेशंस के बारे में, देन हमने वैल्यू डेट सिस्टम, देन हमने एनआरई एनआरओ एफसीएनआर अकाउंट्स, एसएनआरआर अकाउंट्स, और आज हमने बात किया किसके ऊपर, आपका एलआरएस स्कीम के ऊपर, ठीक है। तो ऐसे हर रोज मैं आपके लिए एक सेशन लेके आऊंगा। रोज आपका रेगुलर बेसिस पे सोने से पहले आपको एज अ डोज इनको पढ़ना है, समझना है। कोई क्वेरीज आती है तो कमेंट्स में लिख के बताइए, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप रेगुलर बेसिस पे देखते जाएंगे तो आपके पास एक बहुत बड़ा बैंक होगा ऐसे फाइनेंशियल और इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजीज का, ठीक है। तो कैसा लगा वीडियो जरूर बताएं कमेंट्स के थ्रू। इसके अलावा हमने एक नई सीरीज आप लोगों के लिए स्टार्ट की है, आई होप नाउ एवरीबडी इज अवेयर अबाउट दिस, ठीक है। दैट इज every day at 6 p.m. you'll see PIB, finance based RBI updates, government scheme, ESI, important index and reports आपका, ठीक है। तो इन सब के ऊपर डेडिकेटेड सेशंस हम लोग करते हैं। एंड अगेन I hope everybody is aware about कि these sessions or these topic are the most important for all the regulatory examinations. So do follow those particular one also, right? This is our Telegram group, so you can join this Telegram group for important notifications, updates, and PDFs also, right? So कोई भी ऐसा टॉपिक जो आपको लगता है जिसके बारे में आपको जानकारी की रिक्वायरमेंट है, वो जरूर लिख के बताइए, ठीक है। दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर मी ऑल्सो, ठीक है। और इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट्स होते हैं तो डाउट्स भी आप जरूर लिखें कमेंट्स के थ्रू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। So this is it from my side, guys. Thank you for watching this session. Bye bye. Take care all. Have a nice day. Thank you.